Okay. So student, now we are going to understand the classification of acid and base. ठीक है. So acid और base को हमने classify किया है बेटा on the basis of their solubility in water. On the basis of, मैं यहाँ पर base लिख रहा हूँ कि किस base के ऊपर हमने इनको classify किया है. ठीक है. तो हमने इनको classify किया है on the basis of on the basis of solubility in water. ठीक है. अब अगर हमने सपोज कोई एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व किया, सपोज अगर हमने ले लिया एसिड और हमने ले लिया बेस, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया बेटा, ये हो गया हमारा वाटर, और हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर एसिड और बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो मैं आपको लिख रहा हूं डिसोसिएट्स कंप्लीटली. ठीक है. अगर वो डिसोसिएट हो रहे कंप्लीटली, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे. समझ में आ रहा है? वो हो जाएंगे या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, अगर बेस हो गया, हम बेस अगर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस. समझ में आया? एसिड या बेस अगर हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट मींस दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब Yes, हम sir. अब हम बात कर रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस. पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको क्लासिफाई करेंगे. सो हमने अब ले लिया वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं. तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब हम बात कर रहे हैं वीक एसिड एंड वीक बेस की. ठीक है. अगर हमने वीक एसिड या वीक बेस, सपोज मैं इसको वीक नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं अभी सिर्फ एसिड एंड बेस. सपोज हमने ले लिया एसिड और बेस और हमने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली. ठीक है. अब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो वीक एसिड या वीक बेस है बेटा. मींस दे आर वीक एसिड और वीक बेस. पालवी, एम आई गेटिंग बेटा? वीक एसिड और वीक बेस. अंडरस्टूड एवरीवन? इजी? Yes, sir. Yes. Okay, so take a screenshot for that, then we are going to move further. Take a screenshot fast. Done, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we are going to, I'm going to erase that because I need more space for writing their definitions. Wait a second. किसी को यहाँ डाउट है क्या बेटा? No, sir. नो ना. ओके. सो अब मैं आपको एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होते हैं मैं इसके डेफिनेशन बता रहा हूँ. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड? दो एसिड्स व्हेन और विच डिसॉल्व इन वाटर, एसिड्स विच डिसॉल्व इन वाटर, और ऐसा लिखेंगे एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, which dissociates completely when dissolved in water
when dissolve in water are called as strong acid. Strong acid. Understood everyone? Strong acid. Yes, sir. Okay, now I'm going to write example over here. Example. But we have hydrochloric acid, HCl. It is a strong acid. We have H2SO4, sulfuric acid. It is the strong acid. We have HNO3, nitric acid. It is the strong acid. Okay, so all these three are strong acid beta. Understood? Now we are going to discuss about the weak acid now. Weak acids. So again, the definition is more or less similar, just we have to like change few words here. So acids which do not dissociate completely. Do not dissociates completely when dissolved in water. When dissolved in water are called as weak acid. Weak acid. Understood? Now example. Example, we have acetic acid, CH3COOH. It is the weak acid beta. When you will dissolve in water, it is dissociating about 5 to 8% only. Remaining 95 to like 92, 98%, no, 95 to 92%, it remains undissociated. Okay, understood everyone? Yes, sir. Take a screenshot Yes. then. Take a screenshot beta. Done, sir. Okay, so now we are going to understand the strong base and weak base. So should I erase that? Yes, sir. Okay. Now we are going to understand about the base. So first, strong base. Strong base. What are strong base? When the thing is same, only instead of acid we have to write base. So base which dissociates completely when dissolved in water. When dissolved in water. Base which dissociates completely when dissolved in water are called as strong base. Are called as strong base. Okay, example, we have sodium hydroxide, NaOH. We have potassium hydroxide, KOH. We have magnesium hydroxide, MgOH twice. We have calcium hydroxide, CaOH twice. All these are beta strong base. Understood? Yes, sir. Take a screenshot. Yes, sir. Take a screenshot. Done, sir. Okay, we have one more thing remaining here. Okay. Now we are going to discuss about the weak base. Weak base. Let it is third and it is fourth, because we have already understood first and second in acid and third and fourth in case of base. So I am writing here weak base. Again the thing is same, only instead of acid we have to write base here. So base when which do not dissociates completely. Do not dissociates completely
when dissolve in water, are called as weak base, Example, we have ammonium hydroxide beta, it is NH4OH, it is the weak base. Okay, it is ammonium hydroxide. Now take a screenshot. So now we are going to understand what are alkalis. देखो alkalis are nothing but the base, ये बेस ही है, बट ऐसे बेस जो स्ट्रॉन्ग तो है बट हाईली सोल्यूबल अगर वाटर है, अगर बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो हम उसको अब बेस के साथ साथ हम उसको अल्केली भी कहेंगे। समझ में आ रहा है? अल्केलीज। ओके, सपोज अगर हमने ले लिया बेटा KOH है हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास MgOH ट्वाइस है, हमारे पास CaOH ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सारे के सारे वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हाईली सोल्यूबल है वाटर में। कैसे हैं? हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, बट स्ट्रॉन्ग बेस में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसे सब्सटेंस को बेस तो बोलेंगे, लेकिन बेस के साथ साथ हम अल्केलीज भी बोलेंगे। सो दीज आर अल्केलीज। कड़ल का वाटर अल्केलीज क्या होता है? ओके, सो अल्केलीज की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर। अब अल्केलीज को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया, चलो हम नीचे लिख लेते हैं इसको, अल्केलीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग अल्केली और दूसरा वीक अल्केलीज। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग अल्केलीज क्या होंगे, आई एम गोइंग टू डिफाइन ओवर हियर। ओके, सो दोज बेस, देखो ये बेस ही है। ओके, सो बेसेस which are highly soluble in water, highly soluble in water are called as strong alkalis. Strong alkalis. Example, we have KOH. देखो ये बेस भी है, बट बेस के साथ साथ ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग अल्केलीज। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वीक अल्केलीज की। तो वीक अल्केलीज क्या होंगे? दोज अल्केलीज और बेसेस which have low solubility in water, सारे सारे डिसॉल्व होंगे, बट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग अल्केलीज इनकी सोल्युबिलिटी कम होगी। बेस which have low solubility in water are called as weak alkalis. Example, we have ammonia NH3. Okay, it is the weak alkali beta. Understood everyone? Yes, sir. Okay, so take a screenshot for that.
Done, sir. Okay. Done, sir. Okay, now any doubt here?